Hello, students. Uh, Welcome you all once again. Uh, Class Standard 7 and subject English. So, in the last lecture, we were talking about the poem Sad. Okay, so we have talked or discussed about two stanza already in the last lecture. So in the first stanza, poet is describing about the sad locations, the where is the sad, and already we have discussed the meaning of the sad. The meaning of the sad is a small kind of a room which is not inside the main house but it is away from the main house. So it is located or situated in the garden. The sad is situated in the garden. Okay, and it is looks like a very old because nobody is going there. Okay, nobody is visit there. That's why it looks like a old. So and in the second stanza पोइट बता रहे हैं कि जो साइड है, वो जो रूम है जो गार्डन में है वो बहुत ही ओल्ड टाइप का दिख रहा है और उसके जो ग्लास है वो भी टूट चुके हैं और जो विंडो है वो सब डस्टी दिख रहे हैं और पोइट को लग रहा है कि वो जब भी वहाँ से गुजरते हैं तब उन्हें कोई देख रहा है. ओके, सो दैट्स वाई पोइट has decided to visit there sometime or someday. So I hope you understand first and second stanza. Now we will move ahead in the next stanza, that is our third stanza. So I will read it and I will also explain the hard words or new words. My brother says there is a ghost in the sad who hides under the rotten floorboards. My brother says there is a ghost in the sad. So as we know that अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा आपके घर में, ठीक है, तो वो आपको क्या कहेगा, किसी भी तरह के आपको डराने की कोशिश करेगा. वो बताएगा कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ तो यह है, यहाँ कोई भूत है और यहाँ कुछ भी है, यहाँ जाने का नहीं. ठीक है, तो यहाँ जो पोइट का जो ब्रदर है उसे बता रहा है, क्या कह रहा है कि वहाँ नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि जो वो सैड है वहाँ गोस्ट है. गोस्ट मीन्स भूत रहता है. एंड हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर्स, यानी जेज है और वो जो भूत है, जो गोस्ट है, ठीक है, वो रूटन फ्लोर्स पे हाइड्स है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूटन? Suffering from decay. Rotten means suffering from decay. And floorboards means a long plank making a part of a wooden floor in a building. And if I ever dare to set foot inside, अगर जो पोइट है वो जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, inside the sad, he will jump out and chop off my head. So his brother says, poet's brother says that if you will try to dare to go inside that sad, that devil or that ghost will jump out and chop off my head. What is the meaning of chop off? Chop off means to remove something by cutting. But I will take a peek one day. But poet वो है ना, पोइट जो है वो कभी वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे बस जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे बस जाना है, आखिर क्या है, मुझे बस देखना है. पिक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक? पिक मीन्स लॉन्ग लुक क्विकली. पिक मीन्स लुक क्विकली. ओके, ऐसे आप अचानक से किसी भी चीज़ की तरफ देखते हो उसे पिक कहते हैं. ठीक है. Now we will move ahead to the fourth stanza. I know that there is not really a ghost. Who says that? Poet says, मुझे पता है वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ghost के जैसा कुछ है
नहीं, वो खामखा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द सैड फॉर हीज डैन। सो माई ब्रदर टेल्स लाई, सो हीज ब्रदर, द बोइज ब्रदर स्पीकिंग लाई। वाई? बिकॉज जो ब्रदर है वो उसका डेन, वो उसका जो उस साइड में डेन, डेन मीन्स अ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ डेन, मीन्स उस क्या बोलते हैं, कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स हो, उनके लिए जो रहने की व्यवस्थाएं होती है उसे डेन बोलते हैं। सो देयर इज नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। सो who is thinking that there is not nobody is actually staring at him, and there is not any strange noises also, and the spider has been gone from his web since I don't know when। और सडनली क्या होता है, जो स्पाइडर का जो वेब स्पाइडर होता है वो वेब से चला जाता है और पोएट को पता भी नहीं चलता कि कब गया। And I will go into that sad one day soon, but poet had decided strongly that I will go into that sad one day, but not just yet। but poet अभी सोच रहे कि मैं कभी ना कभी तो उस जो सैड है उसमें जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं जाना है। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में बताया गया है, और कवि जो है, जो पोएट है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक साइड है, और वो साइड बहुत ही ओल्ड है, वहाँ कोई विज़िट नहीं करता है, और सब वेब स्पाइडर वेब लग गए हुए हैं सारी जगह पे। और उसका जो ब्रदर है पोइट्स का, वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पोइट, हमारे जो पोइट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि उन्हें बस देखना है, क्योंकि वो क्या है, वो अभी बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि, और आपके पेरेंट्स और आपके ब्रदर्स कोई भी आपको घर में बोलेगा कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, लेकिन क्या करोगे आप, बेटा ये नहीं करना है, लेकिन क्या करोगे आप वो करोगे, क्योंकि आखिर वहाँ क्या है, और ये क्यों मुझे ना बोल रहे हैं, और क्यों मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए, और इसी तरह हमारे जो कवि है इस पोएम में, जो पोएट है, वो भी इस तरह, वो जो सैड है उसमें जाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। उन्हें जानना है आखिर वो है क्या, घोस्ट जैसा कुछ है या नहीं है, वो उन्हें जानना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके।